Dear students, welcome to Social Science Tutorials. We are back with our second video to help in assignment for education subject for BA program semester 1 in SOL DU in English medium. Link for our previous video is mentioned in the description box. If you are new to our channel or have not subscribed yet, then please do subscribe our channel. If you find this video useful, then like, share and comment. I will be bilingual in my presentation and the text will be in English. Let's start. This is question number 4. Part A of the question paper says, explain the meaning of pragmatic education propounded by John Dewey with examples. Part B says, what is the purpose of education by John Dewey? On the basis of your experiences, explain whether the schools are able to function towards these objectives or not. So we will start with a little introduction about John Dewey. John Dewey, an American philosopher, is known for laying the foundation of the philosophy of modern education system. In 1894, he established his famous laboratory school as an ideal educational institution, which he called a progressive school. So he is known for his philosophy of modern education system, which he established through work in his laboratory school. In this school, he brought progressive changes in learning and teaching methods, also gave due emphasis on progressive educational ideology. Now, coming to pragmatism, pragmatism is a philosophical view, and John Dewey is known for his philosophy of pragmatism in education. Now, let's discuss about a little bit that what is pragmatism. Pragmatism is the philosophy that encourages us to seek out the processes and do things that work best to help us achieve desirable ends. That means ये एक ऐसी philosophy है जो हमारे desirable ends तक हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है. Philosophy of pragmatism is the product of practical experiences of life. It arises out of actual living. It does not believe in fixed and eternal values. It is dynamic and ever-changing. It is a revolt against absolutism. According to this philosophy, reality is still in the making and it is never complete. तो बेसिकली वो ये बात करते हैं कि ये फिलॉसफी जो है प्रैक्टिकल लाइफ से ही निकली है और इसीलिए ये पहले से फिक्स और इटर्नल जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं मानती और ये नहीं मानती कि चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं, रादर ये बिलीव करते हैं कि रियलिटी लगातार चेंज होती रहती है और कभी कंप्लीट नहीं होती और इसका इम्पैक्ट एजुकेशन पे पड़ता है. हम थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, pragmatic education propounded by John Dewey. How we are going to discuss about that, what is the John Dewey's basic concepts which make him a pragmatic philosopher. John Dewey supported learning by doing based on individuals' experiences attained by the interaction with his or her environment. He was opposed to the concept of dualism and believed that thought and ideas of human mind and psyche do not originate due to any external spiritual world, rather it is the product of evaluation. बेसिकली ड्यूअलिज्म एक और फिलोसॉफिकल आइडिया है जो बात करता है कि आइडियाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो आइडियाज की बजाय जॉन ड्यूई जो है वो आइडिया की बजाय जो वर्क है, जो एक्शन है, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं. We can clearly evident experimentalism, pragmatism, utilitarianism, progressivism, etc. directly in Dewey's philosophy. Pragmatism is a philosophy which emerges from educational practices. In the context of education, if we see, तो pragmatism जो educational practices हैं वहाँ से उनकी जो भी problems हैं उनको solve करते हुए, उनको deal करते हुए निकली हुई philosophy है. Education creates values and formulate values and ideas which constitute pragmatic philosophy.
We will explain pragmatic education propounded by Dewey in these following themes. तो ये 4-5 themes हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूई की जो थ्योरी थी वो pragmatic कैसे थी, कि pragmatism क्या कहता है और फिर ड्यूई क्या कहते हैं। तो उन दोनों को जब ओवरलैप करके हम देखेंगे तो वी कैन से कि ड्यूई वाज अ person who was following pragmatic theory in education or pragmatic philosophy in education. So coming to our first point which is aims of education, इसको आप highlight करके लिख सकते हैं aims of education को। Pragmatism does not lay down any aims of education in advance, पहले से एडवांस में वो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उनको लेके नहीं चलते। क्यों? क्योंकि जब रियलिटी फिक्स नहीं है तो पहले से ही एम्स को निर्धारित करना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। इट बिलीव्स दैट देयर कैन बी नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन, लाइफ इज डायनेमिक एंड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट चेंज एंड हेंस द एम्स ऑफ एजुकेशन आर आल्सो बाउंड टू बी डायनेमिक. Education deals with human life. It must help the children to fulfill their biological as well as social needs. According to Dewey, the aim of education is the development of reflective, creative, responsible, thoughtful, and socially efficient individual. Education must be imparted according to the individual's need of the child. The aim of education should be to secure a balanced interaction of the practical and theoretical attitudes. The children should be so trained that they may be able to solve their present day life problem efficiently and to adjust themselves to their social environment. They should be creative and effective members of the society. So basically aim of education क्या है? जब पहले से बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं है तो बच्चे की जो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड होने चाहिए। और ड्यूई भी यही कहते हैं कि बच्चे को ट्रेन जो करना है वो डे टू डे लाइफ को सॉल्व करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए तैयार करना होता है और वो फिर अपने आप ही क्रिएटिव और इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनेंगे जो आगे जाके सोसाइटी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस सेंस में ड्यूई जो है वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी को डील कर रहे हैं। Now coming to methods of teaching, pragmatism means action, from which the word practice and practical has came. Focus of pragmatism is on action rather than on thought. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि pragmatism जो है वो प्रैगा जो वर्ड है वो एक्चुअली एक्शन से मिलके बना हुआ है, तो एक्शन पे फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ सोचने या थॉट पे नहीं। Pragmatism advocates the experimental method of science, thus stressing the practical significance of the thought, and it also makes school into workshop and laboratories. Basically स्कूल ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर कार्यशालाएं होनी चाहिए, लोग काम करें, हाथ से काम करें, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रोजेक्ट लर्निंग एक्सेट्रा होनी चाहिए। प्रैग्मेटिज्म इस बात को एडवोकेट करता है। इट गिव्स एन एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर टू एजुकेशन। वहीं ड्यूई भी साथ में इसी तरह की चीज़ों पे फोकस करते हैं। ड्यूई आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द मेथड विच इंक्लूड एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग. It is activity around which an educational process revolves according to Dewey. Now coming to the question of curriculum, pragmatism is a practical and utilitarian philosophy. Pragmatism makes a man socially efficient. The pragmatists are of the opinion that children should not be asked to work according to predetermined goal. They should determine their goals according to their needs and interests. यानी करिकुलम का जो निर्धारण है वो बच्चों की जो नीड्स और इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो पहले से प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम का मीनिंग ये है कि जिस तरह का सिलेबस, जिस तरह का काम बच्चों को करवाया जा रहा है, तो ये प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। Dewey also emphasized that integrated structure of curriculum which is flexible, जिसमें लचीलापन है, and which is utility based. The curriculum should be developed according to the needs of the child. Adopting a pragmatist approach in his book The Child and the Curriculum, Dewey explained that curriculum and education should be developed to meet social and personal needs. तो social needs भी होंगी, personal needs भी होंगी. The utilitarian aim of curriculum should prepare a child for his or her upcoming life. ये जो utility है, उपयोगिता है, ये करिकुलम के अंदर देखी जाएगी और ये उपयोगिता दोनों के लिए होनी चाहिए, सोशल और पर्सनल नीड्स को केटर करने के लिए, जो प्रैग्मेटिज्म कहता है और इसी तरह की बात ड्यूई भी करते हैं।
Now coming to the understanding nature of the learner. Learner is the one who is learning in the educational process. तो यानी जो बच्चे हैं उसके लर्नर, उसके नेचर के बारे में क्या कहा है प्रैग्मेटिज्म ने. Pragmatism is based on psychology of individual differences. Pragmatism wants education according to the aptitudes and ability of the individual. Individual must be respected and educational plan to cater to his inclination and capacities. तो बेसिकली यहाँ ये बात की जा रही है कि pragmatism जिस साइकोलॉजी में बिलीव करता है वो इंडिविजुअल जो लोगों की भिन्नताएं हैं उसको केटर करता है और ये भी बात करता है कि इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटी, किस तरह का उसका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर ध्यान में रखी जानी चाहिए. Dewey also places more confidence in the quality of knowledge gained by the child's own prior experiences. The popular idea of Dewey is that child should be given freedom to work. He learns more efficiently by performing tasks by his own efforts. He also gave preference to active participation of the child in educational process. तो जिस तरह से प्रैग्मेटिज्म जिस तरह की सोच रखता है इंडिविजुअल के बारे में, ड्यूई ने भी अपने एजुकेशनल प्लान में, एजुकेशन में ये बात की कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए और बच्चों के जो भी प्रायर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लासरूम का पार्ट बनना चाहिए. Now coming to the last point, which is teacher-student relationship. According to pragmatism, individual development must take place in social context. Every individual has a social self and individuality can best be developed in and through society. Here comes the role of the teacher. Pragmatism ये बात करता है कि इंडिविजुअल को अपने डेवलपमेंट के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है और उसी तरीके से फिर वहाँ पर टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी भी स्कूल सेटिंग में. Dewey views teacher as a guide who plays a role of helper in the child's development. According to him, the teacher is an important part of the educational institution who work for shaping the future of the children. The teacher acts as a social worker as he prepares the children for a good and bright future. These children are the ones who build a better nation and a society. So, role of the teacher is also important according to Dewey. तो यहाँ तक हमने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया. फर्स्ट पार्ट को, ए पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. इसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन है पर्पस ऑफ एजुकेशन का, क्योंकि पर्पस तो सेम वही रहेंगे जो आपकी किताब में लिखे गए हैं, तो मैंने ज़्यादातर जो टेक्स्ट लिया है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है. पर्पस ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, एजुकेशनल एक्टिविटी itself has innate value. These values are determined by understanding the student's own goal. He has recognized the importance of independent understanding of the children in setting goal for themselves. तो जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो बेसिकली ड्यूई के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे के अनुसार उसके गोल्स के अकॉर्डिंग ही उसका पर्पस होना चाहिए. अब आगे वो बात करते हैं. 3 से 4 पॉइंट्स में बात की गई है कि जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव पे आधारित होता है. एजुकेशन का जो पर्पस है कि वो यूटिलाइज होनी चाहिए और वो यूटिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी का एज वेल एज इंडिविजुअल की यूटिलिटी होनी चाहिए. यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उपयोगी होना चाहिए और उसकी उपयोगिता बच्चों के लिए भी होनी चाहिए और सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए. ये पूरा पॉइंट आपका जो है किताब से मैंने लिया है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव. तो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने का प्रैग्मेटिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करते हैं. सो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन शुड वर्क टू इंक्रीज द सोशल एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड. तो समाज में रहने लायक उसे बनाने के लिए, उसकी सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल एक ऑब्जेक्टिव और इसीलिए एजुकेशन देनी चाहिए. बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, ड्यूई जो है वो अमेरिकन सोसाइटी से आते हैं, अमेरिकन फिलोसोफर हैं और जिस समय पे वो काम कर रहे थे तो वो डेमोक्रेसी और एजुकेशन की रिलेशनशिप को काफ़ी पढ़ रहे थे और उनकी फिलॉसफी का एक बहुत बेसिक पॉइंट है जहाँ पर वो ये बात करते हैं कि स्कूल्स में डेमोक्रेटिक वैल्यूज इम्पार्ट की जानी चाहिए इंडिविजुअल को. द मेन aim of education is to inculcate democratic values and ideal in a person which in turn can ensure the participation in a democratic society. तो किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बने रहने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है
और डेमोक्रेसी सिखानी पड़ती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो कि स्कूल के द्वारा सिखाई जाएंगी। तो आप ये पॉइंट भी देख सकते हैं, इसलिए भी एजुकेशन का डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग भी एक इम्पोर्टेंस है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टमेंट इन द सोशल एनवायरनमेंट, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको हमेशा जब भी ड्यूई के बारे में ध्यान दें वो बात करते हैं दैट एजुकेशन शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड, एजुकेशन शुड बी यूजफुल फॉर द चाइल्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट इट शुड बी गिवन यूजिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल ऑफ हिज और हर लाइफ। ये भी मैंने आपकी बुक से ही लिया है तो आप ये वहां से डाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेयर यू हैव टू राइट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट whether these objectives which we have discussed earlier are being taken care in the schools or not, यानी क्या स्कूलों में ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इसे लिखिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स चॉक आउट किए हैं और आप इनको देख लीजिए। आप इसमें कुछ चीज़ें और बाद में अपने आप भी ऐड कर सकते हैं। Based on my experience, I can say that schools in India are not able to achieve pragmatic objectives of education. To explain on it further, I would like to present these arguments. The first argument is that teacher-centered approach rather than student-centric approach in teaching. यानी सारा जो फोकस है वो टीचर के ऊपर फोकस होता है, बच्चों के ऊपर फोकस नहीं होता है जब भी पढ़ाया जा रहा होता है। इन आवर स्कूल टीचर सेंटर्ड approach is used in choice of teaching methods, content and in other classroom processes. Children's need, their interest and abilities are not considered. जब भी ये डिसीजन लिए जाते हैं क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्लास में क्या क्या होगा, उसमें बच्चों के क्या इंटरेस्ट है, बच्चों की क्या एबिलिटीज है, ये कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, ये ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। टीचर सब चीज़ों को डिसाइड करता है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिसाइड होती हैं। Number 2 is children not considered as active learners and they have no role in the educational process. उसी पॉइंट के साथ नेक्स्ट कंटिन्यूइंग ये है ये there is a lack of experience, experiment and opportunity for learning by doing in our school. तो स्कूल में एक्सपीरियंस का एक्सपेरिमेंट करने की ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। एंड देयर इज फिक्स एंड प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ओवरऑल एजुकेशनल प्रोसेस। जबकि प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो करिकुलम है वो बहुत फिक्स होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और टीचर्स को कोर्स कवर करवाना ही करवाना है। तो फिर वहाँ पे बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चे पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा केटर नहीं कर पाते और ना ही बच्चों से कुछ पूछा जाता हो तो वो एक्टिव लर्नर होते ही नहीं, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करते। टू मच फोकस ऑन बुकिश नॉलेज एंड मेमोराइजेशन नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन। हमारे जो भी स्कूल्स हैं वो बुकिश नॉलेज पे ही फोकस करते हैं, याद करने पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट फोकस टू मच ऑन मेमोराइजिंग द फैक्ट from prescribed textbook. In such scenario, there is hardly any space for understanding and reflection on the content. Most of the content is unrelated from children's social milieu, so they hardly feel connected to it. बच्चों को समझ ही नहीं आता है जो पढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि उनके सोशल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ वो चीज़ें नहीं है। Thus, it is necessary to have less bookish knowledge and more utility-based vocational and social activities in the classroom, जो कि बात करता है pragmatism। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ पर लैक करती हैं, नहीं मिलती। Number 4 is related to notion of discipline, and notion of discipline is problematic in an Indian school. According to Dewey, the teacher need not to discipline the child through strict rule and punishments. लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है। The objective of inculcating democratic values also failed in Indian school, where discipline is enforced through external factors, not with the participation of the children. तो क्लास में क्या रूल बनते हैं, किस तरह से उन पे काम होगा, ये सब कुछ बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर या हायर अथॉरिटी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो पार्टिसिपेशन से आती हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अगर आप क्लास लेवल पर ही उनको इनकलकेट करना शुरू नहीं करेंगे, डेवलप करना शुरू नहीं करेंगे, तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो उस सेंस में भी इंडियन स्कूल्स आर फेलिंग। अब एक पॉजिटिव से नोट पर हम इस क्वेश्चन के आंसर को एंड करेंगे। बेशक से हमने ये 4 पॉइंट बोले हैं जो कि थोड़ा नेगेटिव शो करते हैं इंडियन एजुकेशन को। हाउएवर, एज आई रेड इन दिस पेपर, यानी ये वाला जो पेपर आपने पढ़ा है सेमेस्टर 1 का, एंड गॉट टू नो फ्रॉम अदर सोर्सेज
and new trends and educational reform, I can say that schools are trying to focus on improving this situation by involving students and adopting child centered अप्रोच। तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने सुना है, आसपास कहीं हम देख रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे इसी पेपर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि फिर भी अब जो स्कूल्स हैं वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूड करते हुए, इन कंक्लूजन आई कैन से दैट जॉन ड्यूई प्रोपाउंडेड pragmatic philosophy in his educational idea and practice. In present time, we need to learn from his philosophy and objectives of pragmatic education. We need a long road to go ahead in this direction. तो एक पॉजिटिव से नोट पर हम इस बात को ख़त्म कर रहे हैं कि जॉन ड्यूई की जो फिलॉसफी है वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी थी, और उसके जो एजुकेशनल आइडिया और जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये चीज़ शो करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में लिखा है। और प्रेजेंट टाइम में हम जो भी थ्योरी है ड्यूई की, उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, और उसके लिए लेकिन हमें अभी बहुत सारा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। आई होप यू like this video, it was useful for you. Please like, share and comment. Thank you for watching. All the best for your assignments.